without attachment or self-indulgence. Susa is the mother of Indian surgery in those days, and 320 Susa is wanting memories can be arrested by opposing dialysis. These are the various details of the surgical Susas and this surgery. In modern times, the art of living, that due to non-communicable disease is about human disease are improper food habit, overcome stress and lifestyle diseases. As we read more in the past, we learn more about our future direction towards achieving a healthy existence. Thank you. Good afternoon, everybody. I am presenting the article on the important aspect of our day-to-day life, that is healthcare through concentration of mind and body. As you know, mind and body are inseparable, but their action through systematic and scientific methods. So to say, Jainism is a scientific religion, what I want to emphasize upon. They are so interrelated and both should be taken care of, because as I told in the beginning, they are intercoordinated. And furthermore, what is dhyana? Dhyana or concentration, artha dhyana, raudra dhyana, and dharma dhyana, shukla dhyana. Acharyas in Jainism, in Jain ones, there, Kripachandras Jnana Varna, Yogita Devas Yogasara, and Pandita Govindas Purushartha Shastra Siddhugaya. It brings together all our thoughts and emotions and moods into one way. And furthermore, dhyana is a mental faculty of express personality. Furthermore, what Jnana Charitrani will say, and Vijaya Tapar, that is in Gada 99 of what is mind, how to describe mind. That is to say, Jains have developed a systematic theory of mind. At the outset I told, Jainism is purely a scientific religion. As being told in Jainism as well, that is Preksha Dhyana. Preksha Dhyana. What is Preksha Dhyana? Split it and get the answer. Preksha Dhyana. Preksha plus Iksha, that you observe closely. So to say, it was displayed by Acharya Shri Preksha, Sharira Preksha, Chaitanya Kendra Preksha, Swasha Preksha, that is awareness, breathe, every day breathing. Life means breathing. And Swasha Preksha, and then rest. Rest is relaxation. And Preksha Dhyana helps power create enthusiasm, and it purifies mind, and increases level of tolerance. Type of posture. Please see here. Padmasana, Kamalasana, lotus posture. It is an excellent expression, that is dhyana, and meditation is being preferred by diet. We should have samyama. Samyama means self-control, self-restraint, and brahmacharya. And we should forbid consuming this and trying to avoid it. And lastly, I conclude with our Namokara mantra. Why should every day pronounce Namokara mantra? Of mind while uttering Namokara, and just overcome mental jaundice, diabetes. अपने अगले वक्ता को बुला रहा हूं, और वो है ऑल इंडिया। पर हम आभूषण पहनते हैं, वहां पर हमारे कुछ दाग बिंदु एक्यूप्रेशर के अंदर आता है, फिजियोथेरेपी आती है। फिजियोथेरेपी के अंदर भी यहाँ पर बताया गया कि दो पैरों की स्थिति दो उंगलियों के अंदर रही है, और दो हाथों की स्थिति दोनों उंगलियों के अंदर रही है, और बीच में ये हमारा मस्तिष्क रहा है। इस प्रकार इस पद्धति के अंदर एक्यूपंक्चर दिए हैं, और नीडल के माध्यम से इलाज किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी कि अपने शरीर के अंदर जो चेहरे के ऊपर प्रतिबिंब के अंदर रहे हैं, उनको दबाकर इलाज करने की पद्धति को रिफ्लेक्सोलॉजी करने की पद्धति को हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। उसके बाद होता है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। आज फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर भी पांव में रहे हुए जो कृत्रिम केंद्र हैं, उनको दबाव देकर इलाज करने की जो पद्धति है वो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है। साथ ही आता है ये रिफ्लेक्सोलॉजी। हमारे जो गर्भ के अंदर जो जन्म के समय की स्थिति होती है, वो होती है काल के समय में भी है। तो काल के अंदर भी हमारे
जैन रिफ्लेक्सोलॉजी की, जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ। तो ये जैन रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है उसके आगे बता रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर जैन रिफ्लेक्सोलॉजी है हाथ में बोले प्रेम की मनुष्य छिन्न सागर में महाराज की मशीनरी है जिसके अंदर एक नहीं अनेक कल्प से जन्म से लेकर मृत्यु तक काम कर रहे हैं। तो ऐसी शरीर के अंदर अगर ऐसी मशीनरी है, ऐसा सिस्टम पर लगा हुआ है कि भाई अगर कोई कारण से वजह से गलत खान-पान से अगर हमारे शरीर में कोई काम नहीं कर रहा है और हमने वो रीसेट बटन दबा देते हैं तो हम हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात आती है रक्त नलिकाओं में जो रुकावट आ जाती है, हमारे शरीर के अंदर 12 से भी बारीक नलिकाएं रहती हैं। आपके घर में जो नल से पानी आता है उस नल के ऊपर अगर हाथ रख देते हैं और ऊपर छोड़ते हैं तो क्या होता है कि उस पानी का प्रभाव तेजी से आता है, लेकिन उसमें जिस पॉइंट के ऊपर अगर दर्द है अगर उस पॉइंट को हम यहाँ से दबा के इलाज कर सकते हैं। हमारे शरीर का जो पाँव में गतिविधि केंद्र रहे हुए और हमारे शरीर का कैसे कोऑर्डिनेशन रहा है वो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। साथ ही मैं आपके सामने एक इंटरेक्टिव चार्ट, विश्व का पहला इंटरेक्टिव चार्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसके माध्यम से आप तुरंत बता सकते हैं कि आरबीसी कम है या हीमोग्लोबिन कम है या वीकनेस है, स्प्लीन के पॉइंट। इसके बाद में सूर्य के अंदर पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक हार्मोन से संबंधित या डायबिटीज से संबंधित ये महत्वपूर्ण ग्रंथि के पॉइंट है, स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी और गैसेस का। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन की पूरी जो नाड़ी है ये सारे पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। उसके बाद में ये सारे पॉइंट जो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बीच में ब्लू कलर के जो पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे ये एड्रिनल ग्रंथि का पॉइंट है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला अति महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद में किडनी से संबंधित यूरिनरी ट्रैक्ट के पॉइंट, उसके बाद में ब्लैडर के पॉइंट। पालन सबसे ज्यादा किया वो भगवान महावीर के माध्यम से सब हम पालन करते हैं, लेकिन अहिंसा का जब शब्द आता है तो महात्मा गांधी से जुड़ जाता है। क्यों हम भगवान महावीर को क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं हम भगवान? उसके साथ साथ वापस एक बात, जैसे मैं मेनका गांधी का बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। उन्होंने भी जिस तरह से अहिंसा का जो नारा इस देश में लगाया है उनके लिए भी मेरा सैल्यूट है। साथ ही जो सदाचार की हम बात करते हैं, आज आपने देखा होगा सदाचार के माध्यम से जो बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने खड़ा किया था। आपको आप जानते हैं अन्ना हजारे विरोधी जिससे जुड़े थे और वो मानते थे कि वो भगवान महावीर के शब्दों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर हम आपस में पुनः दिगंबर श्वेतांबर बढ़ चुके हैं। क्यों? भगवान महावीर ने तो हमें ये रास्ता नहीं बताया, फिर हम क्यों बढ़ चुके हैं? क्यों हम आपस में बढ़ रहे हैं? क्यों हम भगवान महावीर के नाम से एक जगह आने की कोशिश तो करते तो है, लेकिन फिर भी मन से हम नहीं मिल रहे हैं। क्यों हम इस अधिवेशन के माध्यम से What is the goal of our life? Why we work in the earth? घर, अर्थ, काम और मौज. The ultimate goal is to get this mौज. And what is the procedure to get the मौज? जैन सिद्धांत के अनुसार हम मौज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? To free our soul from this bondage of karma through Shamik darshan, Shamik ज्ञान and Shamik चार्य. From the राग and द्वेष, और राग या द्वेष से ही मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होती है और मानसिक स्थिति डिस्टर्ब होने से फिजिकल स्थिति डिस्टर्ब होती है. So मन वचन का how we can help if we can. इस सम्मेलन का मैंने आयोजन किया। इसमें मैंने सबसे पहले ये बात रखी थी कि इस सम्मेलन में सभी पैथी, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो या फिजियोथेरेपी हो, इन सभी डॉक्टर्स के पैथी के डॉक्टर्स मैंने यहाँ बुलाए हैं। साथ में मैंने कोई पंथ का यहाँ पे भेद न हो, इसके लिए सभी पंथों के डॉक्टर्स को भी यहाँ मैंने विशाल हृदय से सबको आमंत्रण दिया है। और इसमें जब ये काम करते वक्त एक बात मेरे ध्यान में आई, जब बहुत सारे संगठन अपनी जगह पे काम हो गए तो जोरदार तालियों की बात का समर्थन करेंगे। तो ये बात अवश्य सभी को योग्य प्रतिनिधित्व देना ही चाहिए, तो ही वो बॉडी अपेक्स बॉडी कहलाएगी। ये भावना मेरी बहुत प्रबल है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब काम करता हूँ तो ये बातों से ऊपर उतर के मैंने काम कर बताया, लेकिन ये करते वक्त मुझे भी कुछ ऐसी लगा कि जब मेरे को पीछे धकला
चला जा रहा है, तो मुझे भी बड़ा खेद हुआ। तो मैंने सम्मेलन सिर्फ नेशनल लेवल पे भी की है, वो मैंने सम्मेलन शिखर में किया, वो मैंने श्रवण गुरुकुल में करके बताया, और वहां पे भी मैंने 500 से ऊपर डॉक्टर उस सम्मेलन में आए थे। और मुझे सभी समाजों से, सभी पंथों के डॉक्टर्स को अपने जोड़े में प्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। वो भी यहाँ बैठा हुआ डॉक्टर है, जो जय डॉक्टर है, उसके पंथकाल के लिए इस सम्मेलन अवश्य करना चाहिए। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। शाकाहार का है, व्यसन मुक्ति का है, अपने धर्म का है, लेकर आप अवश्य काम करिए। और एक बात मैं डॉक्टर्स लोगों को पेड़ों की भूमिका से लोग देखते हैं कि सचमुच हम आज काबिल है, ये सोचने का समय आज आ चुका है। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे सहपाठी डॉक्टर्स से जब मिले होते हैं, तो उसके जिम्मेदार को समझ लेना चाहिए। और मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे कोई भी कार्य अपने माध्यम से या अपने परफॉर्मेंस की भूमिका बना लेना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव ने जैसा डॉक्टर में जब आए और मुझे कहा कि 25 वर्ष इस दीक्षा जीवन को हो चुके हैं, तो आप चिन्मय चिकित्सा रत्न अवार्ड आपने देना चाहिए। और इस भूमिका को एक रूप यहाँ पे मिल चुका हूँ, और उसके नाम में यहाँ घोषित करना चाह रहा हूँ। हाँ, इस कार्यक्रम में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां अवश्य हो चुकी है। जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर राजमल जी जैन, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आप पधारे। कुछ गलतियां हो रही है, क्योंकि ये मात्र मैं बताता हूँ। डॉक्टर अभय दंडे जो गोपालगांव से है, जो जैन लिटरेचर में काम कर रहे हैं, उनके जोरदार तालियों से इनका सम्मान किया जाए। डॉक्टर अजीत पाटिल आयुर्वेद सांगली से, डॉक्टर एच.ए. पार्षद जो बेंगलोर कर्नाटक से बना रहे हैं, डॉक्टर के जैन जो कानपुर से उत्तर प्रदेश से यहाँ पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर मनोहर हेमावत, हाँ सर वो बस गलती होगी, के जैन बनारस से, और डॉक्टर मनोहर हेमावत सूरत, डॉक्टर जय शाह आगे, हाँ डॉक्टर जय शाह आप ही खड़े हो जाइए, आपका नाम तो था। और डॉक्टर पी.सी. मनोरिया कार्डियोलॉजिस्ट भोपाल से, डॉक्टर रामसाई पाटिल जैन साहित्य सोलापुर से, डॉक्टर आर.सी. जैन लखनऊ से, डॉक्टर सुभाष चंद्र मुंबई से, डॉक्टर सुभाष शाह मुंबई से। के जो और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलेज कॉलेज चलाते हैं। इसके साथ साथ इनका और एक कॉलेज है जालना में है, बहुत अच्छी सेवा देश की धर्म की होम्योपैथी कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश अलगोड़ा पाटिल जो फिजिशियन सांगली से, डॉक्टर एम बेगा जी जो मुंबई से है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर जयेश शाह का नाम ले लिया मैंने, डॉक्टर प्रदीप नांदगांवकर जो सोलापुर के आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट है, और मैं उस तुल्य व्यक्ति का नाम लेना चाह रहा हूँ, वो है डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल। कृपया अपने स्थान पर खड़े रह जाइए। ये देखिए, ये खुद खड़े नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये डॉक्टर होने के बावजूद इन्होंने एक समाज के लिए, धर्म के लिए एक ऐसा काम कर रखा है, जिन्होंने 108 फुट मूर्ति जो आदिनाथ भगवान की, जो पैथन से प्रदेश से मानीपुर में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सिर्फ जो सुवर्ण अवार्ड के नाम में इलाज दे रहा हूँ, डॉक्टर धीरज छाबड़ा जानना, डॉक्टर छोटी जगह
होंगी इतना तो खा ले लो। हाँ, वहाँ से चले मन है।